last time, yes, but can you hear me? Yes, Vijay, tell me voice is clear. Yes. Okay, okay. Last time we studied about the two's complement. Okay. And if you remember, definition of two's complement was to convert a positive number into negative And vice versa. and vice versa, or we can say negative into a positive number. For that, let's solve a example as well for the revision point of view. Suppose we have a For value. Yes, Bete, you shared the worksheet with me what? as well, the questions you have solved. So it means that Okay. the two's complement is clear. Yes. Okay. So today we are going to discuss the new topic. Okay, let revise from the book as well. No? We have a topic of two's complement. Yes, there. Okay, you can see the method. That is a negative number. Like we have a minus 79. Okay. So what they did, firstly written in a binary number, and then you can see inverted all the bits. Then they added a plus one, and whatever the answer is, that is a will be a minus 79. Got it? Mm, yes. Same here. There you can see we have only four bits, no? And for the 4 bits, we have to make this first one as a MSB, most significant bit, because it will represent the sign number. Na? If the value is 0, it means that that particular number is a positive, and if the number is 1, that will represent a negative. You can see this one is a -6, and this one was the +6. 4 plus 6 is a +6, and -8 plus 2 is a -6. Got it? Okay. Same here. You can see the examples related to that. So I will share these examples with you as well. And no, these all are the negative numbers, na? Because these are starting with the 1. Done with it? So we have to convert it Yes. into a positive. For that, what we have to do, firstly, we have to invert all the values, and then we will add one that will automatically convert it into a positive. Done with it? Mm, So this was all about the numeric numbers. Today we are going to discuss how we are going to represent the textual data, and you can see the topic name is text, sound, and image. So we will see if we discuss the sound as well, and in the next lesson we will discuss how we are going to represent the image in the computer field. So firstly, we are going to represent or discuss about the textual data. Textual data mean data written in a text format. Text format means like we have a this type of text. You can see a text can be a combination of alphabets, both uppercase and the lowercase. Okay, we must be have numeric values as well, because it's also a textual data, a part of a textual data, and the special symbols as well. The special symbols mean the symbols we have on a computer keyboard, like we have a at the rate of sign, we have a number sign, we have a dollar sign, we have an and sign. Got it? We have explanatory sign. So such type of combination of all these values or the data is considered to be a textual data. Done, beta? Now, how we are going mm, to represent it in a computer? So, beta, always remember the basic method of representing a textual data. The method name is a ASCII for 8 seconds. code. Yes, beta, what we call it as a ASCII code. A very important definition, a very important method. Most of the books, most of the O-level students have the question related to the ASCII code. What is mean by ASCII code? We also call it as a character set as well. Why we call it as a character set? Because it represents the characters. Characters mean the alphabetical values. Got it, Betty? So, firstly, today our main topic is the ASCII code. Now,
What is ASCII stand for? You can see we have a A, we have a S, C, I, and I. These are the special symbols which represent a specific alphabets or specific, we can say, words. Like A stand for American, S stand for standard, C stand for code, I stand for information, and last I stand for interchange. So the combination of all these words is known as a ASCII. And the special code that is used to represent a characteristics or the character set of data is known as a ASCII code. जी बेटे, done? Any question? All listening. Okay, I will share this file with you as well, बेटे. अच्छा ठीक. Just समझे इसको. Okay, you can see here that most of the character sets are represented by the ASCII code, and we have another code that is known as a Unicode. But firstly, we are going to discuss about the ASCII code. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. So every alphabet have a special word. So they say the firstly it was set up in 1963 and it became the standard in 1986. After 1986, every kind of textual data in a computer was represented by the ASCII code. Done, Betty? ठीक. Now we are going to write the definition of the तो ASCII दोबारा code. कीजिए. Yes, Betty. Any kind of a textual data in a computer will be represented by the use of a special code that is known as a ASCII. You can see here. And ASCII stand for A stand for American, S stand for standard, C stand for code, I stand for interchange, and I stand for information. I stand for interchange. It was firstly introduced in 1963, but it became a standard for representing a data in 1986. Yes, but any question? ठीक है. Done? Okay. A very important thing, a kind of a definition, and sometimes we call it as a reason as well, why we use a ASCII code to represent the textual data. So, in a ASCII code or in a ASCII code representation, the character is represented in 7 bits. Okay, it's a very important thing. Till now we studied whatever we are going to represent, that will be at least in a 8 bits, like with a 1 0 1 0 0 0 1 1. And if you could remember the place values as well, those were also a 8 bits, na? But in the ASCII code we represent every character in the 8 bit. It means that कि बेटे वो जो MSP था उसका रोल इसमें नहीं होगा. Done? So only we will deal with the 7 bits. Then 7 bits से क्या मुराद है बेटे? अगर हम 64 तक. Yes बेटे? 64 तक लिखेंगे. नहीं 64 तक नहीं बेटे. हाँ exactly, place value 64 तक होगा. Okay. Secondly, if you could remember the formula 2 raised to power m, according to that total number of जो values हम कर सकेंगे, that will be a 128. Okay, so total 128 characters will be represented. And in the computer field, because we start from the 0, so from 0 to till 127. Got it? अब बेटे इससे क्या मुराद है? अगर हम काउंट करें कैपिटल A से कैपिटल Z तक, अगर हम काउंट करें स्मॉल a से स्मॉल z तक, अगर हम काउंट करें न्यूमेरिक वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, और इसी तरह अगर हम लोग काउंट करें एक्सप्लेनेटरी साइन से जो भी हमारे पास स्पेशल सिंबल हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो कितनी बनेगी हमारे पास? 128 बनेगी. डन? यानी कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज अ ASCII कोड. डन? ओके. जी. यानी कि कंप्यूटर का अगर हम लोग कोई भी कीबोर्ड ओपन करते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा?
उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंप्यूटर को समझने के लिए हम किसका यूज करते होते हैं, आस्की कोड का यूज करते होते हैं। अब बेटे आस्की कोड है क्या? एक आस्की कोड का एक टेबल है। ओके, आस्की कोड क्या है बेटे? एक टेबल है, उसमें यू वैल्यूज लिखी हुई हैं और हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ है। जैसे ए से लेके टिल जी तक हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक कोड है। सेम स्मॉल ए से स्मॉल जी तक सब वैल्यूज का एक स्पेसिफिक कोड है। 0 से लेके 9 तक सब वैल्यूज का एक स्पेसिफिक कोड है। सेम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 1 to 0 to, sorry beta, 0 1 till not from the 0, from at the rate of explanatory sign, at the rate of sign, number sign till the end जो भी होगा सबका एक नंबर है। उसके लिए you can see the table here, this one, इसको this याद one। करना है? वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम्म, यहाँ पे हर नंबर का एक स्पेसिफिक कोड जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। लाइक यू कैन सी स्पेस है, स्पेस का बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर क्या है? 32 है। और हेक्साडेसिमल क्या है? 20 है। एक्सप्लेनेटरी साइन का क्या है? 21 हेक्साडेसिमल। सेम बेटे, सेम हियर यू कैन सी कैपिटल ए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बेटा किससे? 65 से। और स्मॉल ए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे? 97 से। आपने जो याद करना है वो सिर्फ कैपिटल ए और स्मॉल ए को याद करना है। यानी कि कैपिटल ए को रिप्रेजेंट किया जाता है 65 से। इट मींस दैट कि बी का क्या होगा बेटे? 66 होगा। सी का क्या होगा? 67 होगा। डी का क्या होगा? 68 होगा, एंड सो ऑन टिल कहाँ तक हमारा आ जाएगा? जी तक। यानी कि जस्ट आपने एक चीज याद रखनी है कि कैपिटल ए इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द आस्की कोड एज अ 65। अब 65 का अगर हम लोग निकालें बाइनरी, तो 2 3 टाइम, 2 2 टाइम 1, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, and 2 2 टाइम, एंड 2 1 टाइम। ओके, अब जब इसको हम इस तरह लिखेंगे तो यू कैन सी 1 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। तो बेटा ये देखो, ये टोटल नंबर कितने बन रहे हैं हमारे पास? 7 बिट्स ही बन रहे हैं हमारे पास, 8 बिट्स नहीं बनती होती। तो ए को रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो बाइनरी है या डेसिमल है वो 65 है, और बाइनरी क्या होगा? दिस। आपने बस ये याद रखना। एंड सेम हमने 66 का निकाल लेंगे, 67 का निकाल सकते हैं, 68 का निकाल सकते हैं। डन। ओके, डन। सेम इफ वी डिस्कस अबाउट द स्मॉल ए, वो किसके इक्वल है बेटे? 97 के। डन है। स्मॉल बी जी। किसके इक्वल होगा? ऑटोमेटिकली 98। और स्मॉल सी किसके इक्वल होगा? ऑटोमेटिकली 19। स्मॉल डी किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है हमने? स्मॉल सी तक। और सेम इफ वी convert 97 into binary, so 2 4 time, 2 8 time, or 1 2 2 time, 2 4 time, 2 12, 2 6, 2 3, 2 1 1। तो इसका बेटे क्या बनेगा हमारे पास? सेम 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ये किसका बेटे? ए का बाइनरी। एंड सेम हमने बी का भी निकाल लेना, सी का भी निकाल लेना। जी बेटे, डन। जी। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आपको आएगा कि सपोज वो कहते हैं कि वी हैव अ वैल्यू एज अ यस वाई कैपिटल ई स्मॉल एस कैपिटल। क्या कहेंगे? कन्वर्ट इट डबल कोटेशन में डाल के इनटू बाइनरी फॉर्म अच्छा। बाय यूजिंग आस्की कोड। धन्य बेटे साथ बताएंगे कि कन्वर्ट किससे करना है। हमने आस्की कोड से करना है। अब इसमें क्या है? वाई कैपिटल है तो वाई वाले उससे टेबल से, एस कैपिटल है तो कैपिटल वाले से, स्मॉल है ई से स्मॉल से। डन है। यहाँ पे बेटे क्या आते होते हैं? एमसीक्यूज आते होते हैं। एमसीक्यूज क्या आते हैं बेटा हमारे पास? जैसे कि आस्की कोड में जो नंबर्स हैं हमको कितनी बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हैं जिनको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं, ठीक है। इन कितनी है, और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे? 128 कैरेक्टर्स होंगे। और अगर हम उस टेबल को भी देखें और अगर काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी? 128। एक और बात बेटे, इफ यू कैन सी द लास्ट वैल्यू,
that is a 7F, and the starting value is a 00. डन है? यानी कि इसकी एक और भी डेफिनेशन बनती है कि जो ASCII कोड है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी अ 00 टिल कहां तक वो कन्वर्ट करेगा 7F तक कन्वर्ट. तो गॉट इट. ये सारे के सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का आ जाएगा. जी बेटे ASCII कोड समझ आ गई? Yes. ठीक है. ASCII कोड का आपने क्या याद रखना है बेटे? एब्रिविएशन याद रखना है. ठीक है. और इट्स अ बेसिक टाइप ऑफ टेक्सचुअल डाटा कन्वर्जन. और इसमें क्या होता है कि बेटे हर कैरेक्टर को जो है वो 7 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. टोटल नंबर ऑफ 128 कैरेक्टर्स को कर सकते होते हैं और इसमें सारे के सारे जो है वो अल्फाबेट्स आ जाते हैं. डन. ये सारी चीजें बेटे यहाँ पे लिखी हुई हैं. इफ यू कैन सी कि the standard ASCII code or character set consists of a 7 bits. 7 bits means 0 to till 127, and in binary 00 to 7 in a hexadecimal. Got it? That represent the letters, numbers, and characters found on the standard keyboard, together with 32 control codes 0 to 31. ये बेटे important है. Okay, and you can see the table as well. Done है बेटे? And it represent the methodology as well. A है बेटा तो 97 उसने यहाँ पे उसका बाइनरी लिख दिया हुआ. ठीक है. कैपिटल A है 65 है तो उसका उसने बाइनरी लिख दिया हुआ. अच्छा स्मॉल A है कैपिटल Y है तो उसका उसने स्मॉल है आई थिंक और कैपिटल. अच्छा यहाँ पे एक वो बात बता रहा है कि स्मॉल और कैपिटल में सिर्फ सेकंड बिट का डिफरेंस होता है. स्मॉल में 1 होती है और कैपिटल में वो 0 होती है. है ना? सेम Y उसमें सेकंड जो है वो स्मॉल में 1 होगी और उसमें क्या होगी. इट मींस दैट कि अगर कोई कहता है, मैं बेटे सपोज कर रहा हूँ कि E और कैपिटल A का कंपैरिजन करो, तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि कैपिटल E जो है उसका ये कोड है तो स्मॉल E का जो कोड होगा ये 1 होगा और सेकंड वाली लाजमन 0 होगी. है ना? You can see over there. They say the above examples shows that the 6 bit कौन सी है बेटे? This one. अगर हम काउंट करें तो from 1 to 0 when comparing the lowercase and uppercase letter. This makes the conversion between the two an easy operations. Got it? जी बेटे डन है. जी. अच्छा बेटे अब हमारे पास क्या था? ASCII कोड. उसका एक हमारे पास जो है वो अपडेटेड वर्जन आया. That was a extended ASCII code. ठीक है बेटे. अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है किसमें बेटे? अगर हम उसमें डिफरेंशिएशन करें वो 7 बिट्स में था, ये कितनी बिट्स में बेटे करता होता है? 8 बिट्स में करता होता है. एंड 2 रेज़ टू पावर अगर हम 8 देखें तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 256. 256 मींस कि अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 टू टिल कहां तक होगी बेटे? हमारे पास 255 तक. दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंडेड ASCII. डन. इसका टेबल याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ, देयर इज वन थिंग एज वेल. It can also represent the non-English alphabets as well. Non-English alphabet कौन सी होती है बेटे? जो कि यूरोपियन कंट्रीज में यूज हो रही होती है. Got it? Done? Yeah. Till now we have studied about the ASCII code, and bete we also studied about the extended ASCII code. Extended was the updated version of a ASCII code. But bete यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 errors और उन 2 errors बहुत important हैं. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता होता है कि एरर्स इन ASCII कोड. ये एरर्स इन ASCII कोड है कि ये एक्सटेंडेड ASCII कोड के भी एरर्स हैं? बोथ. ठीक है. Okay. First error is only for English script. ठीक है बेटे? English script or somehow Europe script. यूरोप के भी बेटे कुछ लेटर्स हैं जो कि सिंक्रोनाइज करती हैं विद द इंग्लिश, तो दैट इज व्हाई उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. Then you can see over there as well this error too. Disadvantage. ASCII code has number of disadvantages. The main disadvantage is that it does not represent characteristic in a non-Western language. Got it? Like
चाइनीज कैरेक्टर्स, वो अगला था हमारा, ठीक है। सेकेंडली बेटे क्या होता है, आप पढ़ोगे कि हमारे पास ना टाइप्स होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पास विंडोज होती है, कंप्यूटर्स की विंडो होती है। आपने सुना होगा एंड्रॉयड होता है, ठीक है। आपने सुना होगा iOS होता है, ठीक है। सेम बेटे हमारे पास होते हैं यूनिक्स भी, और बेटा हमारे पास लाइनक्स भी होती है। ये क्या होते हैं, ये आप जब आप हाई लेवल कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग जो ज्यादा यूजर हैं इनमें से वो कौन कौन से बेटे, हम या तो एंड्रॉयड यूजर होते हैं या विंडोज यूजर विंडोज। होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द पीपल आर आल्सो यूजर ऑफ iOS, जो कि हमारी मैकिंटॉश या एप्पल जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसके साथ कनेक्टेड होता है या उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेटे ये जो आस्की कोड है ना, ये विंडो को समझ आ सकता है, ठीक है। समहाउ एंड्रॉयड को समझ आ सकता है। ये जो बाकी है ना यूनिक्स और लाइनक्स, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। गॉट इट? चलें, यानी यू तीन कैन को स्टार्ट समझ देयर। आ सकता है और दो को नहीं आ सकता। बाकियों में नहीं आ सकता, ठीक है। iOS को यू भी कैन, आ सकता है। iOS में भी आ सकता है। Where DOS and Windows are used different character for the sum ASCII. Okay, for this reason, अब ये हमारे पास इसके दो डिसएडवांटेज थे। तो इन डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए वी हैव अ स्पेशल कोड दैट इज नोन एज अ यूनिकोड। बेटे यूनिक का यू भी कैपिटल, एन भी कैपिटल, आई भी कैपिटल, सी भी कैपिटल, बाकी सारे के सारे छोटे। यूनिकोड स्टैंड फॉर बेटा यूनिवर्सल कोड। Then Unicode stand for universal code, and as the name suggests, it can represent all language scripts into binary form. ये Okay, एरर्स में नहीं आएगा। and errors नहीं, this is a new code, जिसको हम यूनिकोड कहते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकता है बेटे, हर लैंग्वेज के मीन्स के चाइनीज, जैसे अभी हमने पढ़ा था नॉन वेस्टर्न लैंग्वेज, अरबिक एज वेल, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, डच, कोई भी लैंग्वेज होगी उसको इजिली जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है इनटू द कंप्यूटर। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ यूनिकोड। डन है। बेसिक डेफिनेशन इज दैट। जो बाकी इंपॉर्टेंट है लाइक वो जो था आस्की कोड, वो 7 बिट्स में रिप्रेजेंट करता था। एक्सटेंडेड आस्की जो था वो 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करता था। तो बेटे याद रखना है, जो यूनिवर्सल कोड है या यूनिकोड है वो हर करेक्टर्स के कितनी बेटा 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? एंड 16 बिट्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें 2 raised to power 16, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 64,678। अप्रोक्सीमेटली, मुझे कोई एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 64 किया होता है। और अगर हम इसको स्टार्ट करें जीरो से तो टिल 64,677 तक, इट मीन्स दैट कि बेटे हर लैंग्वेज का, हर स्क्रिप्ट का हर एक करेक्टर जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिकोड में हो सकती है। डन। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा यू कैन सी हियर कि हमारे पास क्या आ गया, यूनिकोड आ गया। यूनिकोड का उन्होंने बताया हुआ है कि ये 128 नहीं बल्कि हर तरह की लैंग्वेज को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द यूनिकोड कंस्ट्रक्ट वाज set up in a 1991 version 1.0, was published with the 5 goals। उसके 5 गोल क्या थे? पहला क्या है कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए फॉर ऑल द लैंग्वेज टू कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी, with more efficient coding system than the ASCII code, adopt uniform coding where ये याद characters। करने हाँ जी बेटे। ये याद करने के सिर्फ समझने के लिए? नहीं 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 नहीं, आप बस इनमें से एक दो जहन में रखिएगा और वो आई थिंक आपने समझ भी लिए होंगे कि ASCII कोड के जो डिसएडवांटेज थे उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यूनिकोड को जो है वो डेवलप किया। गॉट जी। इट? You can see ठीक कि by the use of a ASCII code, we can represent a Russian language as well, Romanian language as well, Croatian language as well, and you can see इसका जो हर लैंग्वेज का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सिंबल अवेलेबल है, ठीक है। हमने बेटा इसका जो टेबल है उसको याद नहीं करना, डन है। ठीक है। तो जी। याद क्या करना है, हमने हमने याद करना है कि ASCII कोड क्या है। ओके,
और उसमें डाटा को कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें कैपिटल ए जो है वो इक्वल टू होता है बटे 65 के, स्मॉल ए जो है वो इक्वल टू होता है 97 के, एंड सो ऑन कंप्लीट हमारे पास जो है वो उसका टेबल बन जाएगा। 7 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो 0 से लेके 127 यानी कि टोटल 128 करेक्टर्स जो है वो इंग्लिश करेक्टर्स जो है उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे बेटे जिसको हम कहते होते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर का, उसको किया जाता है। देन वी हैव एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में बेटे क्या होता है हमारे पास, सेम उसका हमने 8 बिट्स होते हैं। कोड याद नहीं करना, ठीक है। जैसे क्या होती है हमारे पास 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स मीन्स क्या है कि हम 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर 256 सकते हैं। 0 से लेके वो कहाँ तक जाएगा हमारे पास 255 तक। इनके डिसएडवांटेज, एंड देन वी हैव अ यूनिकोड। और यूनिकोड बेटे क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल कोड, हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट all the scripts of all the language to into the form of a computer understandable। ये 16 बिट्स में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डन है। दिस वाज ऑल अबाउट कि हम टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डन है। और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम इसके क्वेश्चंस देखें तो वो टॉपिक के एंड में होंगे। बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, लेट डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल कि हम साउंड को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी बेटे पढ़े आज ही, ये कल तक छोड़ जी। आज ही पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटे इसके साउंड क्वेश्चंस कर ले, और ये इसके जो अभी हमने आस्की कोड का किया अच्छा इसके क्वेश्चंस कर ले। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। यानी पहले एक सब टॉपिक को कर लें फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ओके बेटे कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कलर डेप्थ तो हमने नहीं करा हुआ, ठीक है, बट वी हैव स्टडीड द ASCII कोड एंड द एक्सटेंडेड ASCII कोड, तो यू हैव द डेफिनेशन एंड द टर्म्स एज वेल। देन वी आल्सो स्टडीड टुडे कि ये यूनिकोड जो है वो क्या होता है ना। इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है ना, द कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन 7 बिट्स। एग्जैक्टली। अच्छा बेटे बाकी तो यहाँ एक्टिविटी में नहीं लिखा हुआ। इफ यू हैव इफ यू हैव द वो जो असाइनमेंट थी आपके पास में, okay, you can see here कि character set mean the textual data। ASCII कोड में बेटे सेम वही क्वेश्चंस हैं कि how we represent the data into ASCII code। so 7 bits, 8 bits up to a 4 byte, up to 4 byte mean बेटे कि हम लोग 16 बिट्स और 32 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल कैरेक्टर कितने होंगे बेटा इसमें, 256 कैरेक्टर्स होंगे। गॉट इट। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड के साथ कुछ हमारे पास जो वेस्टर्न कंट्रीज के या यूरोपियन कंट्रीज के जो लैंग्वेज के कोड है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 4 6 7 8 अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मली बेटा कितने होते हैं, 64K प्लस लिखा होता है, ठीक है। और ऑल लैंग्वेजेस के जो कीबोर्ड्स हैं या उनके स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हमने इसमें जो एक्सटेंडेड है उसमें हमने ये यूरोप वाला नहीं लिखना, हैं। वही ना, वेस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। ओके ओके। अच्छा बेटे मेरी बैटरी जो है वो रनिंग आउट, ओके। हाँ ठीक है।